Very good afternoon to everyone. This is a special webinar, dedicated webinar for freshers to understand the post-opening trade setup pages and the usage of that. And I've invited everyone so that it can be revised for all others. But freshers webinars, maybe many of them have not joined, and I cannot wait today for all of those. And we'll have to continue. See, इस मेनू में we would go to trade setup. 4 types of trade setup pages are there: pre-opening, opening, post-opening, and post-closing. Now, for first 1 month, 2 months, 3 months, possibly, we'll follow only post-opening trade setup pages. Once we are used to this post-opening, then on one weekend, for an hour, we'll organize a special webinar to understand this pre-opening and opening. And post-closing, बहुत time लगेगा, not immediately. So let us go to post-opening trade setup pages. Open this in new link, new tab. Now future stocks, क्योंकि हमारे पास new version में only future stocks is there, and all time frame trade setups are there. But initially for first 3 months strictly, we'll trade only and only weekly time frame, and weekly, so automatically it will search. यहाँ से weekly, and then we'll come out of, let us come out from this page. यहाँ पे हम click करेंगे, so we are coming out from this page and we are having this page now. In weekly, we are having 92 opportunities in under different trade setup for buying as well as selling. Now here, this period, script, close and live close will come by default. If you want this current time frame tone and lower time frame tone, we need this anyhow. तो by default आपको हमेशा उसको सिलेक्ट करके रखना होगा कॉलम प्रेफरेंस में जाके करंट टाइम फ्रेम टोन एंड लो टाइम फ्रेम टोन एंड सेव ऑलवेज. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. 4 columns are by default available, and current time frame tone and low time frame tone यहाँ columns में जाके हमको ऑप्ट करना है और सेव करना है. Now फर्स्ट कॉलम जो है 5th जून 2021, ये डेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो प्लान ओपन हो जाएगा. जैसे हम रिकॉर्ड फिर समरी में डेट के ऊपर क्लिक करते ही प्लान ओपन होता है. दिस इज नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, और ये
क्लोज ऑफ द फ्राइडे है एंड यहाँ पे लाइव क्लोज आना चाहिए, जो अभी मार्केट नहीं है तो लाइव क्लोज अपडेट नहीं हो रहा है। नाउ करंट टाइम फ्रेम टोन जो है, जब हम अच्छे से ट्रेंड, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अब तक समझे हैं, ट्रेंड, थियरी, हाउ ओपन्स, गैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एटीआर, रिट्रेसमेंट, ऑल दीज थिंग्स, एक आध महीने बाद ऐसा टाइम आएगा कि ये, इसको हम अकॉर्डियन कहते हैं, और इस अकॉर्डियन में सब कुछ अवेलेबल है। इन so many informations are available here itself. जैसे ये थियरी है, रिवर्स स्लिपिंग बिटवीन आरसी एंड बीडीपी अबव आरसी 100%। तो ये रेड कलर से लिखा हुआ है, मतलब ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और ये थियरी एप्लीकेबल है। यहाँ पर ब्लैक कलर से है बीडीपी आईसी आरआर एंड नॉकमोबिन एफसी। तो दिस सजेस्ट बोथ द ट्रेंड ब्लैक कलर। अगर प्योर अप ट्रेंड है तो डार्क ग्रीन कलर, जैसे बीडीपी इन आईसीआरआर and cut back up in FC. This is mentioned in dark green color. Reverse slipping between RC and BDP above RC 100%. यहाँ पे ट्रेंड का नाम नहीं लिखा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बोथ द ट्रेंड, बट वी कैन रिकॉग्नाइज डार्क रेड थियरी का नाम डार्क रेड से मेंशन किया है, तो प्योर डाउन ट्रेंड है। इफ नेम ऑफ द थियरी इज मेंशन with black color, means both the trend. If name of the theory is mentioned in dark green color, it is pure uptrend. Now next comes trend और theory के बाद हमने सीखा था how market opens. तो here it is mentioned आरसी इंडस्ट्रीज आईसीआरसी में ओपन हुआ 31 मई को 10:30 बजे, इस भाव से आईसीआरसी ओपन हुआ है। नाउ लेट अस से अदानी पोर्ट आईसीएफसी ओपन on 31st May at 10:30 और इस भाव में this is a FC 14.6 TVLS. This is the occurrence price of ICFC. Opens, date, time and occurrence price. एक ही लाइन में हमने चारों दे दिया. So that no, the moment you read, you can know, understand कि how market is opened, on which date, at what price and what time. Now next is higher gap से open हुआ, लोअर गैप से ओपन हुआ कि नो गैप से ओपन हुआ, दिस इज द फोर्थ कॉन्सेप्ट हमने समझा है। तो दिस इज आल्सो अवेलेबल, द ट्रेंड थियरी, हाउ ओपन्स इन गैप। ये चार कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट 4 लाइंस में एक एक लाइन में देने की कोशिश की है। नाउ आईसीआरसी ओपन होकर हमने देखा कि रिट्रेस होकर अपर बैंड ट्रेड करता है, तो उसको हमने FRAR कहा। तो हियर आईसीआरसी ओपन होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ था कभी 31 मई को 12:30 को। इसका इंपॉर्टेंस अभी हम समझेंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द लाइंस। मैक्सिमम रिट्रेसमेंट अगर आईसीआरसी खुला है और बाइंग का जजमेंट हो तो 31 मई को 12:30 बजे रिट्रेस हुआ है। नाउ दिस इज नेक्स्ट इज, ये अगर डार्क ग्रीन है तो फ्रेश सपोर्ट मिला है, अपर बैंड ट्रेड किया है, और ये लाइट रेड है तो एक्टिव रेजिस्टेंस है। ये डार्क रेड है तो फ्रेश रेजिस्टेंस, डार्क ग्रीन है तो फ्रेश सपोर्ट। जैसे यहाँ पे लाइट ग्रीन है, राइट, तो ये चलो हम इसी में देखते हैं। ये डार्क ग्रीन है करंट टाइम फ्रेम में तो फ्रेश सपोर्ट है,
Can't hear your voice. ऐसा क्यों? Let me check with someone. Deepak, can you hear me? Am I audible? Yes, I can hear you. You can hear me very clearly. वो काफी सीनियर्स है जिनको ये सब कुछ मालूम है, बहुत इजी है उनके लिए. स्टिल दे आर स्पेंडिंग टाइम, तो इट इज रियली अप्रिशिएबल. हमेशा मत मैसेज करो अभी. अगर मैं मैसेज ही पढ़ता रहूंगा तो हाउ कैन आई कंटिन्यू द सेशन. लास्ट 2 मिनट्स कन्वर्सेशन मैं फिर से पूरा रिपीट कर देता हूँ. ट्रेड सेटअप पेजेस में हम करंट टाइम फ्रेम टोन, लोअर टाइम फ्रेम टोन यहाँ पे कॉलम्स पे जाके हम करते हैं. नाउ अदरवाइज मैं स्लो हो जाऊं उसके लिए लेट समवन पार्टिसिपेट विथ मी, जो हमेशा हम करते हैं. लेट मी इनवाइट अमीशा, जिनको सुनाई नहीं दिया या तो समझ में नहीं आया. अमीशा, Yes, sir. साउंड है And now I can hear you. बट आपके यहाँ से बहुत साउंड है. लेट समवन, फ्रेशर्स में से कौन पार्टिसिपेट करेगा? काफी सीनियर्स है, उनको आई होप कि मैं उनको दिस शुड नॉट बी बोरिंग फॉर देम. आपने टाइम तो दिया बट आई रियली डाउट कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा. बट एनी हाउ रिवाइज हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा. प्रकाश, I will participate. yes. These 4 columns, period, name of the script, close and live close is coming by default. अगर हमको करंट टाइम फ्रेम टोन और लो टाइम फ्रेम टोन चाहिए तो यहाँ क्लोज में जाना होगा और करंट टाइम फ्रेम टोन, लोअर टाइम फ्रेम टोन सिलेक्ट करना होगा और सेव करना होगा, तो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा. ओके. फिर जैसे जैसे हम सब कॉन्सेप्ट जो Yes, है, sir. ट्रेंड, थियरी, हाउ ओपन्स, गैप, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिट्रेसमेंट, एक बार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग देख देख के फिर बिना देखे लिखना समझ जाएंगे. तो ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो एक साथ में यहाँ पे करंट टाइम फ्रेम टोन में आ जाती है और हमको बार बार हर कॉन्सेप्ट को न याद रखना पड़ेगा न कहीं रेफर करना होगा. ऑल इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके यहाँ पे आ रही है. बराबर है प्रकाश भाई? Yes, sir. एंड हियर ये जो थियरी है जो डार्क रेड कलर से दी है, तो थियरी भी आ गई और डार्क रेड कलर सजेस्ट प्योर डाउन ट्रेंड. आप हाँ ना बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, बिकॉज कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं फास्ट हो जाऊं. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. I'm sure. देन हियर दिस जी. थियरी इज मेंशन इन ब्लैक कलर. तो थियरी का नाम भी आ गया एंड मेंशन इन ब्लैक कलर सजेस्ट बोथ द ट्रेंड. एंड हियर बीडीपी इन आईसीआरआर एंड कट बैकअप इन एफसी. तो थियरी नाम भी आ गया एंड कलर सजेस्ट प्योर अप ट्रेंड. Correct. तो हमारा फर्स्ट 2 कॉन्सेप्ट जो बेसिक शिक्षा गाइड में हम सीखे थे, ट्रेंड एंड थियरी, वो यहाँ पे कवर हो Uptrend गया. suggestion. राइट. नाउ नेक्स्ट हमने सीखा हाउ ओपन्स. तो हाउ ओपन्स जो है वो हियर इट इज मेंशन कि ये आरती इंडस्ट्रीज आईसीआरसी ओपन हुआ है एंड टाइम और डेट के साथ आ गया एंड प्राइस आल्सो दैट आईसीआरसी ओपन एट 1672.65. दिस इज नथिंग बट आरसी 14.6% Yes, sir. टीवी प्राइस. वही Correct. आईसीएफसी है. तो हाउ ओपन्स, डेट, टाइम एंड एफसी 14.6 टीवीएलएस से आईसीएफसी ओपन हुआ, ये आ गया. Yes, sir. राइट. I'm just explaining how trade setup Correct. pages जो है वो डिजाइन किया गया है. देन हम इसके यूसेज पे आएंगे. और ये जब हम, मैं फिर से 4th टाइम रिपीट कर रहा हूँ, once you are all
thorough with trend theory, how opens and gap and all the concept, तो जितने भी हमारे कक्षा में कॉन्सेप्ट है वो सब हमने यहाँ पे कंसोलिडेट करके तो 3-4 लाइन में हर कॉन्सेप्ट को एक लाइन में मेंशन करने की कोशिश की है, राइट। देन हमने कॉन्सेप्ट सीखा हायर गैप, लोअर गैप और नो गैप। तो दिस इज आल्सो मेंशन्ड हियर, नो गैप, नो गैप, नो गैप, नो गैप, नो गैप। अगर कहीं हायर गैप है तो लिखा हुआ आएगा, जिससे ये हायर गैप ओपन हुआ था एशियन पेंट, बट 1 जून को हायर गैप फिलअप हो गया तो पीसी नो एचजी लिखा हुआ आ गया, राइट। जो भी स्टेटस है गैप का दैट इज मेंशन्ड हियर। माय स्पीड इज ओके, समझ रहे हैं सब लोग? कोई हायर गैप So there वाली is, I think there is a lag in the video and in the audio. नो दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट इज, मैं ये आपको कलर समझा रहा हूँ कि हियर ये डार्क ग्रीन है कि डार्क रेड है। On first June 11:30, आरती इंडस्ट्रीज, आर यू एट आरती इंडस्ट्रीज? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रकाश? Green. You are with me? Sir, there is a lag. There is a lag in the video, sir. I don't know whether I am the only one who's experiencing it, but Let me go to someone else. Nikesh? Yes, sir. Audible? Yes, I'm sir. at एकदम proper. आरती इंडस्ट्रीज में है। ये जो है सर आप आरती इंडस्ट्री में हो और अभी वो ग्रीन दिख रहा है सर। हाँ, तो ग्रीन लाइट ग्रीन है कि डार्क ग्रीन है? डार्क ग्रीन है सर। तो मतलब फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है। यस सर। अब फ्रेश सपोर्ट मतलब अपर बैंड या स्टॉप एंड यूज टू बाई जो भी हो। नाउ दिस इज अदानी पोर्ट्स, ये लाइट ग्रीन है सर। फर्स्ट वाला लाइट ग्रीन है, मतलब वो एक्टिव सपोर्ट से था। हो सकता है आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट हो, या री एंट्री इनटू आरसी का एक्टिव सपोर्ट हो, या री बिगिन टू बाई का एक्टिव सपोर्ट हो, मतलब विद इन इंटरचेंज जोन है। परफेक्ट। एंड ये डार्क ग्रीन है मतलब उसने अपर बैंड ट्रेड कर लिया। बराबर। 1, 2, 3 महीने में हमको इस लेवल पे आना है कि देखते ही पता चल जाना कि ये ट्रेंड है, ये थियरी है, कैसे ओपन हुआ, क्या गैप है, रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होके एक्टिव सपोर्ट दिया और बाद में फ्रेश सपोर्ट दे दिया। अभी और हमको ज्यादा जानना है तो हम ये 1 जून का जो लाइट रेड कलर का रिबन है इसको हम क्लिक करेंगे। करूँ क्लिक? हाँ सर। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1 जून को 1:30 बजे एक्टिव सपोर्ट 3540 में एक्टिव सपोर्ट मिला। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में जो टोटल कमेंट्री है, जो स्टोरी है, जो भी अकरेंसेस है, वो सब यहाँ पे ब्रीफ में लिखने की कोशिश की है। 1 जून एट 1:30 775.40 में एक्टिव सपोर्ट मिला, फिर एटीआर जर्नी बिगिन एंड मिडवे हुई, फिर किस वैल्यू क्रॉस किया, आई ग्रेटर देन आरसी 23.6 टारगेट अचीव हो गया। राइट। और 1 जून को 3:30 बजे 3:30 ट्रेड कर लिया और फ्रेश सपोर्ट मिला। यस। और ये ऑटोमेटिकली हम इसको वापस क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही ओपन होगा, डाउन एरो अप एरो। क्लोज होगा, राइट। यस सर। यहाँ पे आईसीएफसी ओपन होके रिट्रेस होकर ये डार्क रेड है और यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा है 1 जून को 11:30 बजे 121.95 में रेजिस्टेंस है। और फिर हम देखें तो उसकी कमेंट्री आ जाएगी कि लोअर बैंड ट्रेड किया और एटीआर जर्नी बिगिन हुई, राइट। बिगिन, राइट। सो इस तरह से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जो नोट्स है ऑल दैट हैज कम हियर। नाउ
स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हुआ नहीं है अभी तक किसी स्क्रिप्ट में। अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हुआ हो तो कैसे मेंशन किया गया है ये हम देखते हैं, नहीं तो कल होगा। जस्ट टुडे इज ट्यूसडे नो, आज पहला दिन है, तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल के अकरेंसेस हाइलाइटेड, हाँ सी Here, हियर sir. MR. यहाँ पे ये एम्परसेंट साइन है, एंड को का साइन है, दिस सजेस्ट कि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है 12:30 बजे। 1 जून 12:30 बजे स्टॉप एंड यूज टू सेल इज अकर्ड। ये हमने अभी बीडीपी डब्ल्यूडीपी का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी है तो उसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज ए करेक्शन सेल ओनली। और स्टॉप एंड यूज टू सेल को हाईलाइट किया हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ द सपोर्ट जो ट्रेड सेटअप पेजेस कैसे डिजाइन किया गया है, वेयर ऑल इंफॉर्मेशंस आर देयर इन फ्यू लाइंस इटसेल्फ। ट्रेड सेटअप कैसे फाइंड आउट करना ट्रेड्स, ये भी हम देखेंगे 5-7 मिनट के बाद फॉर करंट वीक। यहाँ पे है Sir, ये देखो भी अल्ट्राटेक। अल्टरनेट, यहाँ पे एंड साइन है ना, एंड का ये एम्परसेंट साइन जो बोलते हैं, तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है। यहाँ पे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा स्टॉप एंड यूज टू सेल आरसी में हुआ है, अपो बीडीपी हुआ है, राइट। Yes. So like this we can read current time frame tone। अब हम लो टाइम फ्रेम टोन में आते हैं, क्योंकि हम जब भी बाइंग सेलिंग करेंगे तो हमने बात किया है कि FRAR टू वेज अकर होता है। एक तो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना FRAR, Yes. और सेकंड वेज करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होने के बाद लो टाइम फ्रेम में, यानी कि वीकली कर रहा हूँ तो लो टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम, वहां पे अगर सपोर्ट मिला तो हम करेंगे FRAR। तो बराबर। यहाँ लो टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड इन थियरी, हाउ ओपन्स, गैप, रिट्रेसमेंट, कौन सी डेट को कौन से टाइम में हुआ ये हमको मालूम है। एंड पूरा अकॉर्डिंग एज इट इज, ये लाइट रेड है मतलब ये एक्टिव रेजिस्टेंस मिला था, इंटर चैनल में था। तो ये लाइट ग्रीन है तो री एंट्री इनटू आरसी हुआ था आरसी जो में। एक्टिव सपोर्ट है। फिर ये फ्रेश सपोर्ट मिला आरसी इंडस्ट्रीज में तो डार्क ग्रीन से मेंशन किया है कि एक एक करके कैसे पूरी स्टोरी आ गई कि अपर बैंड ट्रेड किया, 100% टारगेट अचीव हुआ, फिर रिट्रेस हुआ, जो हमने कहा कि 100% तक आएगा तो रिट्रेस यूजुअली होता ही है, और रिट्रेस होने के बाद अगर उसने अपर बैंड 100% ट्रेड किया तो नॉन स्टॉप 3 सपोर्ट दे दिया और आरसी 261.8 टारगेट आ गया। ऐसा नो, यस सर। तो आरसी 261.8 आ गया तो वहां भी हमने कहा है कि बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, और ये हाथों हाथ वहां से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। 1 जून को ही 261.8 आके 2:30 बजे स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। सेल हो गया। और जैसे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस से चल रहा है तो ये रेड कलर से आ गया, और ये एंड को का साइन है, एम्परसेंट साइन है, तो हमने कहा ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है और अबो बीडीपी है, राइट। बराबर, राइट। और हियर यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में 5 ट्रेडिंग प्लान आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 31 मई को ब्लू कलर से है, मतलब इस दिन है ना, ये ब्लू कलर से है, तो यहाँ पे इस दिन पूरे दिन में न एक्टिव सपोर्ट मिला, न एक्टिव रेजिस्टेंस अकर हुआ, न फ्रेश सपोर्ट मिला, न फ्रेश रेजिस्टेंस अकर हुआ, तो यहाँ पे कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ, ब्लू कलर ही रहा। बराबर। और 1 जून को फाइनली लास्ट अकरेंस रेजिस्टेंस से था, स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर, तो यहाँ पे 1 जून का अकरेंस जो है वो रेड कलर से हाईलाइट किया, और उस डेट पे क्लिक करोगे तो 1 जून का प्लान भी ओपन हो जाएगा। वो लास्ट अकरेंस जो है, जिस दिन ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग देख देख के और बिना देखे लिख लोगे, जिसके लिए हमको 1 महीना हमारे पास है कि आराम से 1 महीने तक सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग की प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करने के बाद में ये जो अकॉर्डियन है कि देखते ही पता चले पूरा सब कुछ, एक एक अकरेंस जो है मुझे गो थ्रू नहीं करना पड़े, न लिखना पड़े, उसके लिए यहाँ पे रेडीमेड दिया है। एक बार नजर बैठ गई तो ये समझ में आ जाएगा, राइट? राइट सर। एंड 1 जून को जहां जहां स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो या स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो, तो 1 जून को स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है ट्रेड सेटअप में, जब हम ट्रेड फाइंड करते हैं तब के लिए। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टॉप एंड यूज टू सेल, राइट? रेड कलर से है ना? हाँ। तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है। ये 31 मई को सिर्फ एक्टिव सपोर्ट मिला था, और आज उसको अपर बैंड के सपोर्ट के ऊपर गया। 1 जून को भले एक्टिव सपोर्ट भी होगा, एक्टिव रेजिस्टेंस भी होगा, बट फाइनल अकरेंस जो था वो फ्रेश सपोर्ट था। यस। डार्क ग्रीन से ट्रेडिंग प्लान हाईलाइट किया है। बराबर? यस सर। तो इस तरह से वी कैन नो, प्लान खोले बगैर ही हम देख सकते हैं कि 31 मई को कलर के हिसाब से हम मालूम कर सकते हैं व्हाट वाज द लास्ट अकरेंस। अब हियर ग्रीन कलर से है तो ये स्टॉप एंड यूज टू बाई है बाय हुआ। और अबव डब्ल्यूडीपी। रेड कलर से एन को साइन है तो हम कहेंगे, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल। और ये एन को का साइन ग्रीन कलर से है तो नहीं सर। ग्रीन कलर से है तो स्टॉप एंड यूज टू बाई। ओके। और ये हैंड सिंबल जो है ये मैंने आपको नहीं समझाया, और शायद नहीं समझाऊंगा क्योंकि काफी सीनियर्स को ये दिया था, बट उसका कोई यूसेज हुआ नहीं। तो बस ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ा है, बट इसका भी यूसेज जो है आई कुड नॉट एक्सप्लेन। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं समझा, मैं नहीं समझा पाया। तो जो जो मैं नहीं समझा पाया सीनियर्स को भी, तो आपको भी नहीं समझा रहा हूँ। और नहीं समझेंगे तो चलेगा, जितना समझ में आता है उतना हम कर लेंगे। और देखना हो कि यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है। हाँ, स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ है, राइट? 130 को। यस, 130 को। तो यहाँ लिखा, यहाँ पे आ गया स्टॉप एंड यूज टू बाय। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लो टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रेड लेते समय हमको ये खूब काम आएगा। यस सर, ये Right. अपोलो में भी है। यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में स्टॉप एंड यूज टू बाय एज वेल एज स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों हुआ है। तो सो दिस इज हाउ ट्रेड सेटअप पेजेस जो है वो डिजाइन किया गया है। अंडरस्टूड? यस इसमें सर। और समझने की बात नहीं है। 2 सेंटेंस में समझना हो तो ये एक सपोर्ट एडिशंस लॉग का समरी जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग में दिया है। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे, ट्रेंड, थियरी, हाउ ओपन्स, गैप, रिट्रेसमेंट, एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल, वो सब समराइज करके यहाँ पे आ गया, ओके। ताकि जब हम इसको समझ लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो शायद 1 मंथ बाद हमको ये समराइज जो है ये समझ में आना लग जाएगा। ताकि हमारे जो एफर्ट्स जो है, जो हम इनिशियली हम जो एफर्ट्स करते हैं, दैट एफर्ट शुड रिड्यूस। समझ में आने के बाद में, जब तक नहीं समझ में आता है काफी एफर्ट्स करना है। एक बार समझ लिए उसके बाद में देखते ही पता चलना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग। करेक्ट? यस सर। मैं आपको म्यूट करता हूँ। हाँ, यहाँ तक जो हमने समझा उसमें किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो। प्लीज रिपीट करो, ऐसा मत बोलना। रिपीट हम आगे करते रहेंगे, या तो आप वेबिनार सुन लोगे, वापस ये अपलोड हो जाएगा तो हम, क्योंकि सैटरडे संडे के जो सेशन होते हैं आप बार बार कहते हो रिपीट करो, तो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव रिपीटेड। बट आज का जो सेशन है तो हमको 5:30 कंप्लीट करना हो, या तो एटलीस्ट बिफोर 6 कंप्लीट करना हो मिनिमम, तो रिपीटेशन नहीं हो सकता है। रिपीटेशन के लिए आप बार बार सुन लेना और फिर आगे
हमने सैटरडे एक दिन के लिए एक्सटेंड किया है, तो वहां पे आप पूछ लेना। बट किसी को समझ में आ गया हो लेकिन कोई क्वेरी हो तो क्वेरी पूछ लो। अभी कोई एक आध पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो क्वेरी पूछ लो। वाओ, नो क्वेरी। नाउ हम जाते हैं। सो फार हमने समझा कि हाउ टू go to trade setup pages, how to save the column, and how all the occurrences are summarized in few lines. Now we'll go to how to find the trades. Find the trades के पहले हम यहाँ पे जाते हैं। ये शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको दी है। यहाँ कैसे गया मैं वापस बताता हूँ। यहाँ पे हेल्प में गए, यूजर मैन्युअल में गए, इसको न्यू लिंक में हमने ओपन किया। फर्स्ट 3 मंथ्स मैं तो कहता हूँ हमेशा ये जो रेडी रेकनर है इसको हमेशा हाथ में रखना चाहिए, और सक्सेसफुल होने के बाद में तो खास रखना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद ही है ना हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, और केयरलेस होकर हम कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस आउट कर लेते हैं। तो ट्रेड लेने के बाद में मेरा ट्रेड जो है वो ये हमारे पास एक्टिव शिक्षा में 5 ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। उसको कैसे फिल्टर करना, कैसे इनिशिएट करना, कैसे स्टॉप लॉस रखना, ये हम अभी समझते हैं। पहली स्ट्रेटेजी है FRAR, सेकंड स्ट्रेटेजी है FR जो हमको अच्छे से समझनी है। थर्ड स्ट्रेटेजी है ICFC में कैसे बाइंग करना, और फोर्थ स्ट्रेटेजी है रिबिगिनिंग टू बाई में कैसे बाइंग करना, और क्या क्या सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में दिया हुआ है। और ये 4 स्ट्रेटेजी हम फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए, या तो मैं 1 मंथ 2 मंथ नहीं कहूंगा, कम से कम 50 ट्रेड कर लो ये 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे। कमाने के लिए नहीं, कमाई हो गई तो स्टाइपेंड समझो, लॉस हो गया तो इन्वेस्टमेंट समझो। बहुत छोटे वॉल्यूम से करो ताकि हम ये 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी अच्छे से सीख लें। वंस यू आर थ्रो विद दिस 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो ये अक्यूमुलेशन बाइंग में कैसे होता है, ये हम 3 वेज अक्यूमुलेशन होता है जो हम 25-50 ट्रेड कर लोगे, देन विल कम टू दिस। बट कोई ये कहे कि भाई 1 महीना हो गया, अब 2 महीना हो गया तो मैं इसको समझने के लिए लायक हो गया, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हम लायक तब होंगे जब हम 25-50 ट्रेड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू FRAR, FR, हाउ टू बाई इन ICFC एंड रिबिगिनिंग टू बाई। फिर ये मैं हाफ एन आवर में समझा दूंगा। अभी समझाऊंगा तो 3 घंटे में भी नहीं समझा पाऊंगा। ये आप नहीं समझोगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं समझा पाऊंगा। बट आप 25-50 ट्रेड कर लोगे, देन दिस अक्यूमुलेशन वी कैन लर्न। ये हुआ एक्टिव शिक्षा। फिर बेसिक शिक्षा बोलो, एक्टिव शिक्षा बोलो, जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है और आगे बस ट्रेडिंग ही करनी है। हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिल जावे और हाउ टू बाई सेल वो भी आ जाएगा। फिर जिनको आगे बढ़ना है तो यहाँ पे ये भी हम समझेंगे कि एग्जिट लेवल्स कैसे है, क्या चेकलिस्ट है, 4 पॉइंट एडिशनल चेकलिस्ट। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 1 महीना सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक, तो मैं आपको समझाऊंगा कि एडिशनल चेकलिस्ट आपको नजर में बैठ जाएगी। यू नीड नॉट गो थ्रू दिस एडिशनल चेकलिस्ट आल्सो। बट फिर जो नेक्स्ट लेवल पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब जाओ। ये 5 ट्रेड में से ये 5 ट्रेड तो हम करते रहेंगे, बट नेक्स्ट लेवल इज दिस ट्रांजिशनिंग टू पैसिव और पोजिशनल शिक्षा। एक्टिव शिक्षा में से पोजिशनल शिक्षा में हमको आना है। और मैं चाहता हूं कि एक्टिव शिक्षा 3 महीना करने के बाद मैं नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव शिक्षा छोड़ना नहीं छोड़ना वो अलग बात है, बट एक्टिव शिक्षा के बाद में जब हम प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस और पोस्ट ओपनिंग समझ जाए, तो आफ्टर 3 मंथ्स और मे बी आफ्टर 6 मंथ्स, जैसा जिसका ग्रास्पिंग, जैसा जिसका एफर्ट्स, यहाँ पे हम अच्छे से समझ लेते हैं ये ट्रेड सेटअप पेजेस। उसके बाद में पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस ही करने चाहिए। और पोस्ट लूजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस मेरे माइंड में 10 साल से था, 10 साल से है, और मैं हरू भरू हर शिक्षित को दिया हुआ हूँ, बट इट वॉज नॉट
adoptable completely because it was not computerized, it was not framed, it was not available in single line, in single click. बट नाउ ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप जो शिक्षा में बहुत टाइम से है, उनको भी अभी अभी मिला है, जो अभी रिसेंटली होली गई मार्च महीने में, वहां से ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस हमने इंट्रोड्यूस किया है। और अल्टीमेटली ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप करने के लिए हमको ये जो शिक्षा क्रक्स जो है, लास्ट पेज, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, रिकॉग्नाइज करना है। और ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को अभी तो कुछ भी लिखवाया नहीं, जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत लिख लिख के तैयार हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो 9 पॉइंट्स है यहाँ पर, उसमें से कम फर्स्ट 5 पॉइंट्स एंड लास्ट पॉइंट, ये 6 पॉइंट जो है, ये प्लीज जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो देखना है, समझना है और उस समझ को लिखना है। अगर ये 6 पॉइंट आपने समझ लिया तो दिस इज शिक्षा क्रक्स, बस शिक्षा यही है, इतना ही है, 9 पॉइंट्स में आ गया। और इसी 6-7 पॉइंट में से हमने पूरा पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस बनाया है, कुछ भी नया नहीं है। इट इज पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एक्टिव शिक्षा। फर्क ये है एक्टिव शिक्षा में और पोस्ट क्लोजिंग टोन में कि मुझे बार बार ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरा टेम्परामेंट अलाउ नहीं करता है कंटिन्यूस ट्रेडिंग करने के लिए। कंटिन्यूस मतलब नाउ एंड देन नहीं करनी है, तो मैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में शिफ्ट हो जाऊंगा। प्लस पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो रिवार्ड है वो ये तीनों ट्रेड सेटअप पेजेस से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा मतलब कहीं ज्यादा। तो अभी सीनियर्स लोग इसको सीख रहे हैं, मैं भी सिखा रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। और तो जब तक आप तैयार होंगे तो मुझे सिखाना भी आ जाएगा। और काफी सीनियर्स जो है वो मेरे भी मास्टर्स है, तो वो लोग मुझे भी सजेशन देंगे, मुझे भी इंसाइट देंगे, और उनकी इंसाइट से, उनकी समझ से ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में और इम्प्रूव हो जाएगा। तो इम्प्रूव्ड वर्जन जो है वो आप लीजिएगा, बट डायरेक्ट पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में हम नहीं आ सकते हैं। फेज 1 आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग प्रैक्टिस करनी होगी। फेज 2 आपको ये शिक्षा क्रक्स ऑब्जर्व करना होगा और उसकी समझ लिखनी होगी। फेज 3 आपको जो स्नैक्स एंड लेडर्स समझाया, उसमें रिसेंट हाई रिसेंट लो के 30-40 ट्रेड कम से कम लेने होंगे। और हमने लाइव में डिस्कस किया कि कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ से 5% बढ़ेगी, कौन सी स्क्रिप्ट 5% टूटेगी। और ये हम कमिंग सैटरडे आपको, मुझे फीडबैक देना होगा। बहुत होमवर्क है, बहुत असाइनमेंट है। फर्स्ट 3 महीना नई दुकानदारी चालू करते हैं तो उसी में आपको लगे हुए रहना चाहिए। अभी अभी जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स होमवर्क असाइनमेंट कर लोगे, उसके बाद में रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना होगा। फिर पैशन के ऊपर है कि पोस्ट क्लोजिंग टोन में ये 4th फेज है। फर्स्ट फेज सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग, सेकंड फेज शिक्षा क्रक्स ऑब्जर्वेशन, थर्ड फेज प्री ओपनिंग, ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में मिनिमम 100 ट्रेड्स करने हैं। काफी सीनियर्स जो है उनको शिक्षा सिस्टम समझने में 2000 ट्रेड, 3000 ट्रेड, 5000 ट्रेड उतना किया तब उनको समझ में आया कि उन्होंने क्या सीखा है। लेकिन अब शिक्षा सॉफ्टवेयर जो है उस लेवल पे है कि हम सिर्फ 100 ट्रेड्स करके है ना समझ जाएंगे कि हमने क्या सीखा है, लेकिन 100 ट्रेड्स तो करने होंगे। जब आप इसमें 100 ट्रेड्स आप अच्छे से कर लोगे, फिर पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप जो है इसी को अडोप्ट कर लेना चाहिए। और इसमें एक और बेनिफिट ये है, एक तो रिवार्डिंग है, फ्रीक्वेंट ट्रेड्स नहीं है, समझ के ऊपर है। और इसमें बैक टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में 2018 से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में 1995 से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मंथली अभी दिया नहीं है, बट मंथली में भी 1995 से हम बैक टेस्टिंग कर सकेंगे। तो आपका टेम्परामेंट क्या है, आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है तो प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग करते रहो। कम ट्रेडिंग करनी है बट जर्नी लंबी चाहिए, ट्रेडेबल डिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो पोस्ट क्लोजिंग करते रहो। और उसमें इतने सारे ट्रेड सेटअप है कि
ट्रेड सेटअप सब सीखेंगे, सब जानेंगे। अल्टीमेटली इट इज ऑल वन सिनारियो ओनली, करेक्शन सेल और पुल बैक। करेक्शन सेल मेनी वेज इट अकर्स, पुल बैक मेनी वे इट अकर्स, तो सब हमने पोस्ट क्लोजिंग में कवर कर लिया। उसमें से एक या दो आप कर लो, बस चल पड़ेगी। सब कुछ सीखना जरूरी है, सब कुछ करना जरूरी नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू द पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस अगेन। हम यहाँ काउंट में जाएंगे। काउंट में देख रहे हो ना, हमारे पास है ट्रेड सेटअप फिल्टर, फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट फिल्टर। तो हम यहाँ आ जाएंगे वापस ओरिजिनल पेज में। फिर यहाँ से निकलना हो तो यहाँ लर्न मोर, तो हर ट्रेड सेटअप के पीछे बाइंग सेलिंग का जजमेंट क्या है, रीजनिंग टू बाय, रीजनिंग टू सेल दिया है। यूजर प्रोफाइल, आप हर ट्रेड सेटअप का अपने लिए यूजर प्रोफाइल बना सकते हो। कॉलम्स मतलब आपको जो जो कॉलम सिलेक्ट करनी है वो कॉलम्स यहाँ आ जाएगी। आपको अभी सिर्फ करंट टाइम फ्रेम टोन, लोअर टाइम फ्रेम टोन, ये दो कॉलम ही सिलेक्ट करनी है। एंड काउंट, काउंट में जाएंगे तो इतने सारे बाइंग और सेलिंग के सेटअप है, लेकिन कंसोलिडेटेड ट्रेड सेटअप यहाँ है। बाइंग इन ट्रेंडिंग, बाइंग इन नॉन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन नॉन ट्रेंडिंग। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाता हूँ, बट ये सब ट्रेड सेटअप एक्चुअली सिर्फ इसमें से 2 या 3 ट्रेड सेटअप ऐसे हैं जो हमको एज ए बिगिनर लेने हैं। बाकी सब थियरी वाइज ट्रेड सेटअप जो है वो काफी सीनियर्स को उस तरह से सिखाया था, तो उस तरह से वो ट्रेन हो गए हैं, इसके लिए उनके लिए ये रखा है। बाकी इतने सारे ट्रेड सेटअप, इतने सारे ट्रेड सिनेरियोस उनको लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी लाइट ग्रीन है मतलब नॉन ट्रेंडिंग है, नॉन ट्रेंडिंग बाई है। लाइट रेड मतलब नॉन ट्रेंडिंग सेल है। और ये नॉन ट्रेंडिंग बाई एंड सेल ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स के लिए है, क्योंकि मैंने उनको सिखा दिया, इसलिए मुझे यहाँ पे रखना पड़ रहा है। बट आपको ये बाइंग इन नॉन ट्रेंडिंग, सेलिंग इन नॉन ट्रेंडिंग न सीखने की जरूरत है, न करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जितनी फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी और मेंटल कॉम्पिटेंसी है उसमें हमारे पास ट्रेंडिंग ट्रेड्स में ही ट्रेड मिल जाएंगे। फिर पैशन है तो मैं आपको कभी समझा दूंगा कि व्हाट इज नॉन ट्रेंडिंग। नॉन ट्रेंडिंग में भी अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे बाई करना, अगेंस्ट द ट्रेंड कैसे सेल करना। बट फर्स्ट 2-3 मंथ हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग ही रखते हैं। नाउ फर्स्ट ट्रेड सेटअप जो आपको सीखना है इमीडिएटली, जो बहुत बेसिक है, इज दिस। मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ एंड बाइंग में पहला ट्रेड सेटअप बाय बाइंग व्हेन करंट टाइम फ्रेम ओपन्स इनटू ICFC, राइट। और ये ट्रेंडिंग ट्रेड है, इसके लिए यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा है बाइंग इन ट्रेंडिंग। अब कैसे फाइंड आउट करना, तो यहाँ लिखा हुआ ICFC लोअर टाइम फ्रेम और अप ट्रेंड बोथ लिखा हुआ ना, वहां जाओ, मतलब ट्रैकर, ट्रैकर इन सिस्टम फिल्टर्स अवेलेबल। तो हम वापस पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाते हैं। आई वांट समवन टू पार्टिसिपेट विथ मी, ताकि मैं आराम से स्लो होके समझाऊं। Who will participate from freshers? प्रतीक, प्रतीक, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप मुझे अनम्यूट करो। हाँ सर। ये रेडी रेकनर में कैसे जाना वो आपको मालूम है, राइट? यस सर। रेडी रेकनर में जाके हम पेज 3 में हैं यस सर। बाइंग के लिए। पेज 3 में हम आज ये लास्ट 2 समझेंगे एंड फर्स्ट 2 भी आज ही समझेंगे। फर्स्ट 2 में पहला समझेंगे FRAR समझेंगे, FR हम फर्स्ट डे बोलेंगे, राइट। ओके सर। तो पहले हम ये ले बाइंग व्हेन करंट टाइम फ्रेम ओपन्स इनटू ICFC, यस सर। ये ट्रेड सेटअप का नाम है। अब मुझे इसको ट्रैक करना हो तो कैसे ट्रैक करना, तो मैं पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जा रहा हूँ और ये काउंट में ट्रेड सेटअप पेजेस में जा रहा हूँ। एंड ये थोड़ा ऑर्डरिंग जो अभी बिगड़ गया है, पहले बहुत अच्छा था,
इसको ठीक करने का टाइम नहीं मिला, बट ICFC लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, ये थर्ड वाला है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। राइट, Yes, sir. यहाँ लिखा हुआ है ICFC प्लस लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, जाके सिलेक्ट करो। Yeah, sir. Yes, और sir. हम वापस पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में आ रहे हैं। और इसको हम बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड, तो ये चेक बॉक्स है, यहाँ से हम विल कम आउट एंड वी आर अगेन बैक टू द ट्रेड सेटअप पेजेस। तो ICFC आपने सिलेक्ट किया हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप वीकली टाइम फ्रेम में हो और उसमें 20 रिकॉर्ड है। Yes, sir. और इसको हम कहते हैं फॉलिंग Buying in चैनल FC. में बाइंग करना। Yeah. और हम सबसे ज्यादा बाइंग करना सीखेंगे फॉलिंग चैनल में। ऐसा नहीं है कि राइजिंग चैनल में बाइंग नहीं करेंगे, बट हमारा प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस कि हमेशा 3 वेज हम फॉलिंग चैनल में बाइंग करेंगे, 2 वेज हम राइजिंग चैनल में बाइंग करेंगे। तो 3 वेज और 2 वेज हम फिर से बाद में, आप नोट करके रखो, कमिंग सैटरडे जो हमारा एक्स्ट्रा सेशन है उसमें हम सीख लेंगे। बट विल ऑलवेज प्रीफर बाइंग इन FC, ये भी लिख लो क्यों, दैट आल्सो विल टेक अप ऑन दिस सैटरडे। क्यों बाइंग इन FC, फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड सेकंड प्रेफरेंस इज ऑलवेज बाइंग इन राइजिंग चैनल्स। FC. नाउ अदानी पोर्ट्स, ये ICFC ओपन हुआ 31 में 10:30 बजे। ये हम समझ लो कि मंडे को बाजार में अवेलेबल थे, तो ये ट्रेड सेटअप मंडे को फिल्टर होके आ गया और प्योर अप ट्रेंड है। आपको फिर से देखना होगा, नहीं तो यहाँ पे लर्न मोर में जाना होगा। देखो 2 वेज ये सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी को इंटरेस्ट है टू नो रीजन टू बाय, रीजन टू सेल समझना है, वाई टू बाय, वाई टू सेल समझना है, इन रियल सेंस मार्केट लिटरेट बनना है। क्योंकि हम अगर रीजन टू बाय, रीजन टू सेल समझेंगे तो उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक, जो मैंने बार बार कहा कि बाइंग सेलिंग की स्किल आ गई, परफॉर्मेंस आ गया, लेकिन उसके बाद में अगर आपको स्केल करना है, स्किल डेवलप करने के बाद में नेक्स्ट लेवल है स्केल करना। तो स्केलिंग करनी हो तो स्केल इन 2 वेज, स्केल इन 2 वेज। एक तो वॉल्यूम बढ़ाना है, तो आपको ये बाइंग सेलिंग का जजमेंट आपने प्रैक्टिस किया होगा, रीजन टू बाय, रीजन टू सेल प्रैक्टिस किया होगा, तो हम स्केल कर पाएंगे। और दूसरा स्केलिंग इन दिस वे कि यहाँ से हमको पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाना है, हमको यहाँ से पोजीशन शिक्षा के ट्रेड सेटअप में जाना है, रिवर्सल बाय सेल समझना है, मास्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना है, हमको पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में करेक्ट सेंट्रल WDP BDP समझना है, RAR समझना है, काफी कुछ हमारे पास है, काफी कुछ। तो वहां पे हम धीरे धीरे अगर हमको जाना है, पैशनेट लोगों को इसको स्केलिंग इन 3 वेज, थर्ड वे कि मुझे सिर्फ मेरा काम नहीं करना है, आई वांट टू प्रोटेक्ट अदर्स मनी, आई वांट टू ग्रो अदर्स मनी एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, तो मुझे सब रीजनिंग सीखना होगा। लेकिन मैंने देखा कि काफी लोगों को रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने 2 वे सॉफ्टवेयर बनाया कि एक तो रीजनिंग भी रखें और हाउ टू बाय, हाउ टू सेल भी रखें। तो देयर इज 2 वे वी आर गोइंग टू लर्न नाउ फ्रॉम टुडे। One is how to buy, how to sell, and second is why to buy, why to sell. ये why to buy, why to sell में बहुत कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि this takes time. This takes time. और how to buy, how to sell कल से तैयार हो जाओगे। लेकिन मैंने बहुत बार कहा है, प्लीज अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ ओवर ए पीरियड ऑफ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट हम ह्यूमन बीइंग उल्टा करते हैं, वी ओवर एस्टिमेट अवर सेल्फ कि हम कल कितना कमा ले, कल कितना सौदा कर ले। वी शुड अंडर एस्टिमेट अवर सेल्फ एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 months।
तो यहाँ पे रीजन दिया है कि ये ट्रेड सेटअप में हायर टाइम फ्रेम, आई वांट टू सैल्यूट हियर ऑल द सीनियर्स, क्योंकि ये सब उन्होंने मैन्युअली किया है आज तक। ट्रेडिंग प्लान रखते थे मंथली, वीकली, डेली का, और हायर टाइम फ्रेम में जाके देखते थे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, हायर गैप है कि नहीं है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है कि नहीं है, आईसीआरसी हायर गैप है कि नहीं है। समझ रहे हो? ये सब आई डोंट नो, आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम कि उन्होंने ये सब मैन्युअली किया। इसके लिए वो लोग घड़ा ही गया, और ये मैंने इतना कंप्यूटराइज आपको करके दे दिया कि आपको मंथली प्लान ही ओपन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट वी यूज टू रेफर मंथली टाइम फ्रेम प्लान, वहां से हम ये 4 बात जो है डिसिलेक्ट करते थे, सिलेक्ट करते थे, फिर करंट टाइम फ्रेम में आके ये ट्रेंड और सिलेक्ट करते थे, फिर इतनी थियरीज जो है वो वेरीफाई करते थे, और कौन सी थियरी नहीं रखनी है वो डिसिलेक्ट करते थे। फिर हम एटीआर में हमेशा यूजुअल एटीआर और नैरो एटीआर ही करेंगे, एक्सपेंडेड एटीआर नहीं करेंगे, तो वो भी फिल्टर हो गया। हायर गैप लोअर गैप हम ट्रेड नहीं करते हैं तो उसके लिए एकदम डिफरेंट स्ट्रेटेजी है जो हमको अभी नहीं सीख रहे हैं, शायद नहीं सीखेंगे, और नो गैप ही हम करेंगे। और ये आईसीएफसी खुल के आईसीएफसी में पड़ा है, ये हमारा फिल्टरिंग है। फिर लोअर टाइम फ्रेम में क्या क्या सिलेक्ट किया, ट्रेंड में अप ट्रेंड और बोथ द ट्रेंड सिलेक्ट किया, थियरी में कौन कौन सी थियरी सिलेक्ट की, ये थियरी हमने सिलेक्ट की, और अपर बैंड क्या होना चाहिए, आरसी 38.2 होना चाहिए, इतना हमने कंप्यूटराइज करके रखा हुआ है। निकेश, आप जिनके थ्रू आए हो वो पर्सनली करते थे, प्रतीक हाँ सर। वो पर्सनली मैन्युअली ये सब करते थे, समझ रहे हो? और Yes, अब ये sir. मैन्युअली नहीं करना है तो कम से कम रीजन टू बाय, रीजन टू सेल फॉर एवरी ट्रेड सेटअप जाके देखो, तो उससे कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन इंप्रूव होगा। या सर। मैच्योर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मैच्योर। मैच्योर हो जाओगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू बाय, हाउ टू होल्ड, व्हाट इज द स्टॉप लॉस, व्हाट इज द टारगेट, ये जितने भी सब सेटअप है, सब सेटअप लेफ्ट साइड में, उन सब में ये दिया हुआ है। तो लिखा इनिशिएट बाइंग whenever immediate lower time frame trades with an active support or fresh support with the stop loss of lower time frame। जिस दिन हम इनिशिएट करते हैं उस दिन का स्टॉप लॉस हमारा लोअर टाइम फ्रेम का ही होगा, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम देख के बाइंग करते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, तो हमने अभी ट्रेडिंग सेटअप पेजेस में देखा, ट्रेड सेटअप पेजेस में, कि राइट साइड में जो लोअर टाइम फ्रेम का टोन है उसमें प्लान का जो लिंक है वो कलर ही हमको कह देगा कि लोअर टाइम फ्रेम में बाजार सपोर्ट से चल रहा है कि रेजिस्टेंस से चल रहा है। यस और नो? यस सर। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, वापस इसमें से बाहर निकलते हैं, तो अगर मैं अदानी पोर्ट कर रहा हूँ आईसीएफसी, और 1 जून को आईसीएफसी 31 मई को 10:30 बजे ये आईसीएफसी ओपन हुआ, राइट? यस सर। ओपन होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट कब मिला? ये 31 मई को मिला था। समझ रहे हो? नहीं मिला था, इट इज ए ब्लू कलर, ग्रीन कलर नहीं है। तो 1 जून को, यानी कि आज 1 जून को आज बिगिनिंग टू बाय हुआ ना, ले लो। बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ में जाओ, फिर यहाँ लिखा है इनिशिएट बाइंग once lower time frame trades with any type of support, projecting current time frame also will trade with active support। क्योंकि मैं करंट टाइम फ्रेम वीकली ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लोअर टाइम फ्रेम से मैं क्लू ले रहा हूँ, तो मैं अस्यूम करता हूँ, क्या करता हूँ, अस्यूम कि लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल जाएगा, तो मेरी अर्ली बाइंग होगी। क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में 1 जून को ये थोड़ा टाइम लगेगा, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं, ये करते करते आएगा, क्वेरी पूछते पूछते आएगा। 1 जून को अगर मैं करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट की वेट करता हूँ तो कितने बजे मिला?
130, क्या भाव में मिला? 775.40, बट यही अगर मैं लो टाइम फ्रेम में देख के करता हूँ 1 जून को, तो मुझे क्या भाव में बाइंग आई? 1130 at the rate of क्या भाव? 769.10 पैसा। 6 रुपया नीचे मिला। हाँ, 6 रुपया नीचे। यस। हाँ, बस एक बार लो टाइम फ्रेम में से क्लू ले लिया ना, इनिशिएट कर लिया ना ट्रेड, उसके बाद में मुझे अगर करंट टाइम फ्रेम में भी आज सपोर्ट मिल गया 1:30 बजे, हाँ, अब लो टाइम फ्रेम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। then we will ride a trade on weekly basis. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। आई लव यू क्यों कहा मैंने? एज ए फ्रेशर अभी तो जस्ट समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, बट खुश मत होना। हाँ, बहुत बाकी है। आज से एक्चुअली कोर्स बिगिन हुआ है। Yes, sir. बस इसको हमने खाली कॉन्सेप्ट और ये वो सब सीखने में गए। नाउ दिस आर द ट्रेड सेटअप पेजेस। Yes, sir. लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेने के बाद में करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया। Hmm. ये इसीलिए हमने लो टाइम फ्रेम से बाइंग किया 769 में, ये सोच के कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल जाएगा, और मिल Okay. गया ना, उसके बाद में लो टाइम फ्रेम में ना पूरा हफ्ता देखने की जरूरत नहीं है। Hmm. दिस इज द फर्स्ट थिंग। बट गलती क्या होगी मालूम है? फर्स्ट 3 मंथ्स लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही हम लेते हैं ना, Hmm. फिर बार बार है ना डेली टाइम फ्रेम देखते रहेंगे और वहां रेजिस्टेंस मिलता है ना तो एग्जिट हो जाओगे, बराबर। और ये गलती होए तो डोंट से इट इज ए मिस्टेक। ये मिस्टेक होगी। जो सीनियर बराबर। पार्टिसिपेंट है उनसे 1-1 साल तक हुई है, आपको 1 महीने के लिए अलाउड है। बराबर। 1 महीने बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट 100 ट्रेड्स में गलतियां होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, लो टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वहां पे मुझे अर्ली बाइंग करनी है। Hmm. और इसका क्यों हम लो टाइम फ्रेम में देख के बाइंग करते हैं? ये आईसीएफसी ओपन हुआ 31 मई Yes. को। 10:30 अब बजे। हाँ, अब ये 2 काम ही कर सकता है, या तो लोअर वेन ट्रेड करेगा या तो फॉलिंग चैनल से बाहर निकलेगा। यस और नो? Yes. अब साइकोलॉजिकली समझो कि हम लो टाइम फ्रेम से क्लू क्यों लेते हैं, लो टाइम फ्रेम से हम सपोर्ट क्यों फाइंड करते हैं। फिर साइकोलॉजी समझो कि लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, यस और नो? Yes. मतलब उसको ये लोअर बैंड ट्रेड करना है कि फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना है। इसको लोअर ब्रांड ट्रेड करना है फॉर टेकिंग दिस थिंग। लो टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया आज, हाँ, तो इनको बाजार सपोर्ट से चल रहा है सपोर्ट से चल रहा है। 11:30 बजे, तो द प्राइस स्टॉप डिक्लाइनिंग एंड स्टार्टेड राइजिंग। बाजार टूटना बंद हुआ और बढ़ना चालू हुआ लो टाइम फ्रेम में। Yes. तो आप देखो कि अगर लो टाइम फ्रेम में 769 में बाजार यहाँ खड़ा है, 769 यहाँ पे कर्सर रखो, 769 में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, यस और नो? Yes. और कहाँ तक जाके 761 तक जाके 761 70 तक गया था। वो 761 धीरे 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 बढ़ के 769 में सपोर्ट मिला। बराबर। तो 769 में सपोर्ट मिला तो उसको फॉलिंग चैनल से बाहर निकलना है या लोअर बैंड ट्रेड करना है? हम्म। तो वो फॉलिंग चैनल से बाहर निकलेगा अभी। हाँ, अगर मैं फॉलिंग चैनल से बाहर निकलने की वेट करूंगा तो 775 40 में माल मिलेगा, बराबर। नहीं तो 769 में माल मिल गया। बराबर। बट जिस दिन मैं लेता हूँ, जैसे कि आज 1 जून को अगर मैंने 769 में माल लिया हो तो आज ही वो करंट टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम में एक्चुअली ट्रेड कर रहा हूँ वीकली, माय पेरेंट टाइम फ्रेम इज वीकली, हम्म। माय मेन टाइम फ्रेम इज वीकली। तो जिस टाइम फ्रेम में मैं सौदा ले रहा हूँ उस टाइम फ्रेम में आज ही वो सपोर्ट से चलना, तो ही मैं उसको होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ओके। और फर्स्ट जर्नी 769 में हमने लिया तो पोजीशन कहाँ स्क्वायर ऑफ करेंगे? फॉलिंग से बाहर निकल गया, फिर 778 ट्रेड कर लिया, यस और नो? किस Yes. वैल्यू क्रॉस कर लिया, तो एक और सपोर्ट मिला FC 14.6, हम्म। फिर RC 23.6 आ गया,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट करते बुक हैं। स्क्वायर कर लीजिए। ये फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हुई, करेक्ट। यस और नो? यस फर्स्ट सर। आई मीन वेबिनार, नो? फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए ना, जहां जहां प्रॉफिट बुक करने को कहा गया है ना, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यहाँ लिखा हुआ भी है टारगेट अचीव। यस सर। और फिर हम यहाँ भी जाके कंसोलिडेट करके हियर आल्सो वी आर हैविंग कि कहाँ कहाँ एग्जिट लेवल है, ये लिस्ट भी है हमारे पास। करेक्ट। ओके, यस सर। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हुआ। फिर हमने सेकंड जर्नी की बात की थी कि RC 38.2 TVLS तक आप RC 14.6 रिट्रेस हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो फिर बाई कर लो, टारगेट RC 100। फिर हमने थर्ड जर्नी की बात की, ATR जर्नी कंप्लीट हो, फिर रिट्रेस हो, फिर बाई कर लो, ATR जर्नी एक्सटेंड होगी। बराबर। बट हर बार हम जब बाइंग करते हैं तो एक आदत डालनी है, एक एक्सपर्टाइज हमको डेवलप करनी है कि हर न्यू जर्नी में आफ्टर रिट्रेसमेंट विल वेट फॉर वन सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम। ओके। इससे 3 फायदे होंगे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखने से। बेनिफिट 1, फर्स्ट बेनिफिट 1 कि वो हमको सजेस्ट करता है कि करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट से चलना चाहता है। बराबर। सेकंड बेनिफिट, अर्ली बाइंग हो गई तो ट्रेडेबल डिस्टेंस हमारा बढ़ गया। यस और नो? एंड थर्ड मेजर बेनिफिट, बाइंग का करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट हो, लोअर टाइम फ्रेम से सपोर्ट से चल गया है, मतलब अब मेरा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर हो गई। ओके। क्योंकि करंट टाइम लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, दैट सजेस्ट कि करंट टाइम फ्रेम में उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करना है। दैट सजेस्ट करंट टाइम फ्रेम में उसको टारगेट अचीव करना है। ओके। गेटिंग इट? ये जो मैं सब Yeah. कह रहा हूँ, आई नो कि 100% आपको समझ में नहीं आ रहा है। 38.2 समझ में आ रहा है बस है। बाकी जब हम प्लान करते 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 करेंगे ना, ट्रेडिंग प्लान करेंगे, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेंगे, ट्रेड करेंगे ना, 100 ट्रेड्स करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। यस सर। नाउ हम एक और ट्रेड में जाते हैं, AU बैंक। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू रिजेक्ट। 2 भी स्किप है, लेकिन मुझे रिजेक्ट करना है तो ये लाइट रेड है ना, इट इज नॉन ट्रेंडिंग। नॉन Not a ट्रेंडिंग buy. नाइफ होगा या हायर गेप होगा तो ये रेड कलर से आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए हमको Okay. एक्सपर्टाइज वे में काम करना होगा, एक्सपर्टाइज वे में सीखना है, और हमको अभी एक्सपर्ट नहीं बनना है। यस सर। एट दिस लेवल सीधा सीधा जो है ये एकदम सीधा सीधा है, प्योर अप ट्रेंड है, डार्क ग्रीन है, ICFC खुलना मतलब करेक्शन सेल है, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला बाय कर लिया, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला होल्ड कर लिया, टारगेट आया सेल कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब वापस अदानी पोर्ट में जाते हैं तो ये अपर बैंड ट्रेड किया, यस और नो? हाँ तो सर। आपको क्रक्स में सिखाया गया है कि दिस अपर बैंड इज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट और सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। सर दिस इज आवर फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। एंड फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड करना हो और उसको जर्नी सस्टेन करनी हो तो क्या जरूरी है? इट हैज टू रिट्रेस। टेस्ट टू रिट्रेस, वेरी गुड। और यहाँ पे यही चेकलिस्ट है, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये एडिशनल चेकलिस्ट आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर ये 4 पॉइंट ही हमेशा चेक करना है, और ये हमेशा करना है, हमेशा मतलब हमेशा करना है। बट ये make it a point to always check the occurrences of the retracement when your upper band trades with or without retracement.
तो यहाँ पे अदानी पोर्ट में विथ रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया? सर विदाउट रिट्रेसमेंट है। विदाउट रिट्रेसमेंट किया तो हम क्या करेंगे? It has to be rejected then. You have to wait for the retracement. रिजेक्टेड, हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे। We have to wait for the retracement basically. और आपको इस वीक Without में wait, देखना है, आपको इस वीक में देखना है कि रिट्रेसमेंट यानी कि मिनिमम रिट्रेसमेंट जो आरसी 38.2 ट्रेड किया हाँ, सो फार, तो उसका टीवीएलएस 7805 है, ये मिनिमम रिट्रेसमेंट, और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आरसी 14.6 टीवीएचएस 785, बराबर, ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। और स्टॉप टू सेल 776.90 में होगा जब सपोर्ट टीवीएलएस लो इज लोअर देन सपोर्ट टीवीएलएस, तो स्टॉप एंड यूज टू सेल। यस और नो? yes. तो ये कल आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन अदानी पोर्ट को ट्रैक करना है। एक जर्नी कंप्लीट हो गई, अब सेकंड जर्नी कैसे लेंगे? जब रिट्रेस होगा और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। और So ये sir, when you say over time, yes sir. हाँ आ रहा हूँ Sir, कि आरसी पहले तो रिट्रेस होना मतलब मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, ये समझ में आया? yes sir. जिस दिन मिनिमम रिट्रेसमेंट और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो जाए हाँ, उसके बाद कभी भी लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर हाँ. जब भी सपोर्ट मिले बाई कर लेना, और आपको करना है। So how we checked on 1st June जहाँ पे वो रीबाय आया, वैसे वापस वो डेली में उस दिन में हमको जहाँ पे भी वो बाइंग में मिल जाता है तब वो वापस वहां से बाय करना है। वेरी गुड। जैसे आईसीएफसी खुल के हमने लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला कि नहीं चेक किया, वैसे अब सेकंड जर्नी के लिए रिट्रेस होने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये चेक करना है। और रिट्रेस होने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है और वो ट्रेड मिस नहीं करना है, नहीं तो मूर्खों में माने जाएंगे। Noted sir. क्योंकि रिट्रेस हो गया, मिनिमम रिट्रेसमेंट मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, और हमको ये मान के चलना है ये रिट्रेस होगा होगा होगा, क्योंकि अपर बैंड ट्रेड करना, ब्रेकआउट पॉइंट ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। वो ट्रेड कर लिया, बिना रिट्रेसमेंट ट्रेड कर लिया तो ये नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाय 61.8 ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। ये Yes, इस बार इसमें हो या नहीं हो, लेकिन हमेशा हमको एक प्रिंसिपल बनाना है, और ये काफी केस स्टडीज के साथ आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको बहुत सारे केस स्टडीज दिए हैं, उसमें देखो जब भी अपर बैंड ट्रेड करता है तो क्या नेक्स्ट क्लाइंबिंग बाय ट्रेड कर पाता है। अगर विदाउट रिट्रेसमेंट किया है तो, विथ रिट्रेसमेंट किया रहता ना तो सीधा 100% आ जाता, अभी भी 100% आएगा ये, लेकिन उसको 788 या 783 आना होगा। पॉइंट नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट देना होगा। तो जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट देगा ना, एक बात कंफर्म होगी, क्या? रिट्रेसमेंट कंप्लीटेड, yes. मतलब बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी कंप्लीटेड, मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड, मतलब उसको स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना है, मतलब उसको आरसी 100% आना है, टीवीएलएस या एब्सोल्यूट वैल्यू या टीवीएचएस, और ये आएगा। लेकिन 90% क्राउड की बात करें तो क्या करेंगे? आज अदानी पोर्ट लिया होगा, कल 788 783 आएगा ना, निकल जाएंगे, फिर वो बढ़ेगा और यहाँ पड़ा रहेगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा फुल डे पड़ा रहेगा। ये देखना हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन इट रिट्रेसेस। Noted sir. इसी तरह से एयू बैंक रिजेक्ट करो, क्योंकि ट्रेंड थियरी में Catching the डार्क falling. ग्रीन नहीं है, डार्क ग्रीन नहीं है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। कैचिंग द फॉलिंग नाइफ को रिजेक्ट करना आ गया ना, तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ को कैसे सिलेक्ट करना ये हमको समझ में आएगा, बट रिजेक्ट करना नहीं सीखोगे तो इसका इंपॉर्टेंस भी नहीं समझोगे कि क्यों रिजेक्ट किया। अब बैंक निफ्टी
प्योर अपट्रेंड है, Pure आईसीएफसी uptrend. ओपन हुआ है 31 मई को 10:30 बजे आईसीएफसी ओपन हुआ, राइट? Yes, sir. अब यहाँ लिखा हुआ है ICFC lower time frame uptrend or work लिखा initiate buying once lower time frame trades with any support, projecting current time frame we trade with active support, hold when current time frame trades with an active support. एक बार current time frame support मिल गया तो should be of current time frame, stop loss should be of current time frame. ये हुआ how to buy, how to sell. ये मैं 2 मिनट में समझा सकता था, लेकिन मैंने आधा घंटा लिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों बिहेव करता है, साइकोलॉजी के साथ समझो, Correct. तो ट्रेड में कन्विक्शन आएगा। दूसरा Yeah, sir. तरीका है Understood. आईसीएफसी ओपन हुआ ना, लो टाइम फ्रेम सपोर्ट मिला ना, ले ले, आरसी 23.6 आया ना, स्क्वायर ऑफ कर दे, बस खत्म, ऑल ओवर, नो स्टोरीज, नो कमेंट्री। यस और नो? Yes, sir. लेकिन बाजार दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करते हो, बोलो मुझे। व्हाट इज Friendly द हूँ, डिफरेंस sir. फ्रेंड्स एंड मेनी अदर्स टू whom we know? With friends, you are more frank. Then You can talk anything to them, गपशप whatever you कर like. गपशप कर सकते, You can spend. बाकी Yes. सब जगह पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। Correct. फ्रेंड के साथ हम गपशप करते हैं, तो मार्केट के साथ हमको क्या सीखना है? इफ यू वांट टू मेक मार्केट योर फ्रेंड, तो मार्केट के साथ हमको गपशप करनी होगी। पॉइंट टू पॉइंट करोगे, Correct. आईसीएफसी बोल लो टाइम में सपोर्ट मिला, बाय कर ले, आरसी 23.6 स्क्वायर ऑफ कर ले, अब रिट्रेसमेंट होगा, फिर लो टाइम में सपोर्ट मिले, फिर बाय कर ले, आरसी 100% स्क्वायर ऑफ कर ले, फिर ना एटीआर जर्नी कंप्लीट होगी, रिट्रेस होगा, लो टाइम में सपोर्ट मिले, फिर बाय कर ले, फिर जो एटीआर एक्सटेंड होके और 50% मिलेगा ऑफ एटीआर। 3 लाइन में हो गया तीनों ट्रेड। बट दोस्ती होगी तो प्यार होगा, और प्यार करना जरूरी है यहाँ पे। Correct. यस और नो? देखते हैं बैंक Yes, निफ्टी। sir. आईसीएफसी 31 में 10:30 को आईसीएफसी ओपन हुआ। यस और नो? Yes. अब 31 में 10:30 आईसीएफसी ओपन होने के बाद वो मैंने सोचा पांचों ट्रेड सेटअप आज सिखा दूंगा। लेट अस लर्न ओनली वन। हम इस तरह से स्पेशल वेबिनार हर ट्रेड सेटअप के लिए रखते रहेंगे, डोंट वरी। आज आप 20 ट्रेड है ना, बाई साइड और सेल साइड भी होंगे। ये आईसीएफसी से बाहर निकले तो यहाँ पे आईसीआरसी देयर इज नो ट्रेड Sir, I सेटअप ऑन think सेल। उसके नीचे ही है. उसके नीचे ही है ICRC lower time frame down trend. डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये नीचे ही है, सेकंड। Sir, उसके नीचे. हाँ. ये सेकंड इमीडिएटली। ये थर्ड और फोर्थ Yeah. दोनों एक ही है, और आज ही आप कर लोगे। पूरा वीक आपको यही करना है। ये 20 स्क्रिप्ट sir. कैसे बिहेव की, ये 13 स्क्रिप्ट कैसे बिहेव की, एंड यू हैव टू कम अप विद द क्वेरीज। Yes, sir. लेट सीखेंगे थोड़ा, चलो एफआरआर थोड़ा लेट सीखेंगे। लेट अस मास्टर वन ट्रेड सेटअप, वन सिनेरियो एट वन टाइम। मैंने बहुत पहले गलती की, एक साथ में बहुत कुछ सिखा दिया। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नो टाइम फ्रेम अपट्रेंड और बोथ, हमने अदानी पोर्ट समझा, अब बैंक निफ्टी समझ रहे हैं। तो 31 में 10:30 बजे आईसीएफसी हो गया, बैंक के सेटअप में है, राइट? अब क्या करना है? 31 में 10:30 के बाद 31 में का प्लान ओपन करो। 31 में 10:30 के बाद इन सेम आवर अगर होता है, सेम आवर अगर ये याद रहे तो, नहीं तो आगे समझ में आ जाएगा। सेम आवर होता है तो सबसे पहले तो हम इन्हें नहीं लेंगे, बराबर। बट सेम आवर में अगर हमको एक सपोर्ट का दूसरा सपोर्ट मिल गया तो हम ले लेंगे। ओके, समझ रहे हो? व्हेनेवर करंट Yes, टाइम sir. फ्रेम और लो टाइम फ्रेम में कोई अकरंस सेम आवर में होता है, सेम आवर में, तो पहले तो हम रिजेक्ट करेंगे Yes. और हम उसको वापस सिलेक्ट करेंगे कभी
तो एक और सपोर्ट if देते there हैं। is बराबर तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा, 31st में 10:30 बजे यहाँ पे बाइंग किया होगा, और बाइंग करने के बाद yes sir इमीडिएटली नेक्स्ट 11:30 बजे करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिल गया। हाँ अब लोअर टाइम फ्रेम देखने का ही नहीं, ये बराबर बहुत जरूरी है। लेकिन आप एक गलती करोगे, क्या देखोगे वो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलेगा ना, तो निकल जाओगे। बराबर तो फिर आप ट्रेडिंग क्या कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम? sir we are actually trading weekly that is what Misty we are doing by looking at it लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, उसके बाद भी अगर आप लोअर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम देखते रहते हो, वो डेली टाइम फ्रेम ट्रेड करते हो, डेली टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करते हो, तो यू आर ट्रेडिंग व्हाट टाइम फ्रेम, डेली और वीकली? we are trading weekly actually बट हम करें, अगर डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, समझ लो कि 31st में 11:30 बजे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, राइट? yes और 31st में 11:30 बजे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद हाँ 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, तो हमको उसको 100% क्या करना है, ignore इग्नोर करना है। yes बट फिर भी हम लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, मतलब आई एम ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम, आई एम नॉट ट्रेडिंग वीकली टाइम। weekly time frame इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन करंट टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद एन एक्टिव सपोर्ट, तो स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, स्टॉप लॉस करंट टाइम should फ्रेम be का of होना current चाहिए। जब तक करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिलता है, तुमने लोअर टाइम फ्रेम में लिया बेची हम कर लेंगे, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बट एक बार करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद लोअर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस 0 है। आर यू गेटिंग दिस? yes sir और ये गलती होगी तो होने देना, कोई बात नहीं, yes sir बट बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, 8-10 बार Correct. होने देना, ठीक है? correct तो 31st मई को क्या भाव में बाइंग किए अकॉर्डिंग टू दिस? so kiss 35 value 35,136.50 एक्चुअली यही करना चाहिए, बट आईसीएफसी का ओपन होना, वो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट का मिलना, दोनों एक साथ में हुआ, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, मुझे भरोसा नहीं आता है। हमको क्या करना है, चलना यार, एक और सपोर्ट देने देना, कितना फर्क पड़ेगा, 6 पॉइंट का तो फर्क पड़ेगा, यस सर ना? yes एंड फिर हम देखते हैं कि 5th जून के प्लान में आ जाओ, वीकली के प्लान में हाउ इट इज बिहेव्ड। आरसी 23.6 11:30 को आ गया, तो दिस इज स्क्वायर ऑफ, यस सर नो? yes अब ये क्या किया, आरसी 38.2 तक आके 31st मई को रिट्रेस भी हुआ, रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया, यस सर नो? yes इसको हम क्या कहेंगे, FRAR। FRAR तो ये जब रिट्रेस हुआ ना 31st मई को 2:30 बजे, ये सेकंड जर्नी बिगिन हुई, yes और 31st मई को 2:30 बजे रिट्रेस होने के बाद वापस मैं 31st मई में जाता हूँ कि 2:30 बजे के बाद कोई सपोर्ट मिलता है क्या, देखता हूँ। 2:30 बजे के बाद कोई सपोर्ट मिला, नहीं मिला, नहीं मिला ऐसा 2:30 बजे ही मिला, बट आई वांट, अगर सेम आवर में ऐसा हुआ है तो आई वांट वन मोर सपोर्ट। या तो आपको थोड़ा एक्सपर्ट वे में देखना होगा कि रिट्रेस होने के बाद सपोर्ट मिला है तो हम लेंगे, वी आर नॉट एबल टू मेक आउट हियर, क्योंकि दोनों का टाइम 2:30 बजे है। बराबर क्योंकि व्हाट इज द ट्रेड, रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, बराबर है तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला 1st जून को, या तो हो सकता है 31st मई को, विच वी डोंट नो। और यहाँ पे री बिगिन टू बाई हुआ 1:30 बजे, ये क्या हुआ, FRAR, बट FRAR हमेशा फ्रेश सपोर्ट से होता है, एक्टिव सपोर्ट से नहीं होगा। बट यहीं पे हम 1st जून में आ जाते हैं वापस, तो ये रिट्रेस होके फ्रेश सपोर्ट मिल गया करंट टाइम फ्रेम में, yes दिस बैंक निफ्टी इज FRAR।
करेक्ट। अब RC 14.6 है ना, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, वापस रिट्रेस हो रहा है, वापस रिट्रेस हो रहा है। तो दिस इज नथिंग बट बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी। 650 का 350 हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें वीकनेस है। जब तक स्टॉप एंड यूएस टू सेल नहीं होता है, तब तक एनी डिक्लाइनिंग प्राइस above the support is a bargain buying opportunity. It is a retracement, it is an accumulation. और हर भाव में 35 151 के ऊपर ये बाइंग ही है। और वापस एक लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले या नहीं मिले, अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो वो वापस कंफर्म करेगा कि उसको RC 14.6 सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड नहीं करना है, और उसको RC 100% 36,000 आना है, इसी फ्राइडे के पहले आना है। ये सेकंड जर्नी है, गॉट इट। ये सेकंड जर्नी। सेकंड। फिर इसका ATR जर्नी 36,773 है, जो बहुत ऊपर है, RC 100 और 127 और 161.8 के बीच में है, बीच में है। वी डोंट नो, बट अगर ये आ गया तो हम कहेंगे ATR जर्नी कंप्लीटेड। फिर वहां से वो रिट्रेस होगा, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा, फिर वो RC जहां पे जर्नी कंप्लीट हुई उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड करेगा, तो हम कहेंगे ATR जर्नी एक्सटेंडेड। इसी में से आपको 20 स्क्रिप्ट में से कोई स्क्रिप्ट मिल जाएगी जिसमें ATR जर्नी क्या हुई है, एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंडेड हुई है। राइट। यस। अब मुझे 20 स्क्रिप्ट में से रिजेक्ट करना हो तो एक तो ट्रेंड इन थियरी से हमने सिलेक्ट किया ओनली प्योर अप ट्रेंड होना चाहिए। अब आज के बाद मुझे कोई स्क्रिप्ट रिजेक्ट करनी है, 20 स्क्रिप्ट में से कुछ स्क्रिप्ट रिजेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ करंट टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस। जो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही है उसको मुझे अभी बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 11 स्क्रिप्ट है जो करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रही है। तो मुझे 11 स्क्रिप्ट क्या करनी है, रिजेक्ट। रिजेक्ट। और अगर मुझे समझ लो कि सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट तो बाइंग है, तो मुझे सिलेक्ट करनी है, तो कौन सी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करूंगा, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट। वेरी गुड। तो करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट करो, तो 8 स्क्रिप्ट है ना, ये बेस्ट बाई है। ये अदानी पोर्ट्स, AU बैंक, बैंक निफ्टी, HCL टेक, HDFC बैंक, इंडिगो, RBL बैंक एंड विप्रो। और इसमें भी बेस्ट बाई कौन सी है, जो अभी फिलहाल रिट्रेसमेंट से चल रही है, तो मैं करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट करता हूँ। एक्चुअली 8 स्क्रिप्ट में से आपको रिट्रेसमेंट ढूंढना चाहिए कि कौन सी अभी रिट्रेसमेंट से चल रही है। जैसे नो कैसे ढूंढ सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, रिट्रेसमेंट नहीं है, इसको सिलेक्ट करो, रिट्रेसमेंट है, यस और नो। यस। इसको सिलेक्ट करो तो रिट्रेसमेंट है, EU बैंक, बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट है, आपको खुद को ढूंढना चाहिए। HCL टेक में रिट्रेसमेंट है, HDFC बैंक में रिट्रेसमेंट है, इंडिगो में रिट्रेसमेंट है, RBL बैंक में रिट्रेसमेंट है। तो ये फर्स्ट स्क्रिप्ट को छोड़ के, अदानी पोर्ट को छोड़ के सब में रिट्रेसमेंट है। और सपोज लो कि भाई अब किसी को नहीं करना है, ये एफर्ट्स नहीं करना है, तो उसको रेडीमेड सिंगल क्लिक पे दे दिया कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से भी चल रहा हो और करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से भी चल रहा हो, वो स्क्रिप्ट बता भाई। तो ये 6 स्क्रिप्ट है जो करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से भी चल रही है, रिट्रेसमेंट से भी चल रही है, सपोर्ट से भी चल रही है, रिट्रेसमेंट से भी चल रही है, सपोर्ट से भी चल रही है, रिट्रेसमेंट से भी चल रही है, सपोर्ट से भी चल रही है, रिट्रेसमेंट से भी चल रही है। बराबर बराबर। इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी क्योंकि डार्क ग्रीन है, रिजेक्ट करूंगा क्योंकि लाइट रेड है AU बैंक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चलेगा, बट मैं कह रहा हूँ रिजेक्ट एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 3 मंथ। HCL टेक रिजेक्ट, HDFC बैंक सिलेक्ट, इंडिगो रिजेक्ट, RBL बैंक सिलेक्ट। अब बस एक ही काम करना है, ये 6 स्क्रिप्ट में से जो हमने सिलेक्ट किया, जिस भाव में तारीख को वो रिट्रेस हुआ, 31 मई 2:30 बजे रिट्रेस हुआ, यस और नो। यस। इसके बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले उठा लो। यस। इसमें हम चेकलिस्ट चेक नहीं कर पाए आज, तो स्लोली करना,
इसमें से और भी रिजेक्ट करने के लिए ये मैंडेटरी चेकलिस्ट है 4 पॉइंट जो हम आज नहीं ले पाए, हम थर्सडे को लेंगे। बट आज जिसने ये ट्रेड सेटअप दिया और ये 20 स्क्रिप्ट कैसे बिहेव की, 20 स्क्रिप्ट में खास करके ये 6 स्क्रिप्ट कैसे बिहेव करती है, या प्रैक्टिस करोगे तो हम ये आगे ये मैंडेटरी चेकलिस्ट में जा पाएंगे। यस सर। एक ही बात है कि करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट है, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, ले लो। करंट टाइम फ्रेम में बाइंग का जजमेंट है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हुआ, लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, ले लो, बस सिंपल, राइट। यस सर। और किसी को कम समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इमीडिएट समझता है, कोई धीरे धीरे समझता है, अपने को फास्ट समझने की जरूरत नहीं है, बराबर ढंग से प्रॉपरली परफेक्ट समझने की जरूरत है। हमेशा बोलो। Sir, first and foremost, I'm not able to understand only what is current time frame and what is lower time frame. So when you Current say time कि lower time frame में support ढूंढना है, what do we mean by that, sir? लोअर टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम। Daily time frame, okay. मैं वीकली कर रहा हूँ तो लोअर टाइम फ्रेम क्या हुआ? Current time frame. मैं वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हाँ. तो माय करंट टाइम फ्रेम इज व्हाट? Weekly में करे तो daily. मैं वीकली ट्रेडिंग कर रहा हूँ, माय टाइम हाँ. फ्रेम इज वीकली। आई एम ए वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर। आई एम ए Right, वीकली okay. टाइम फ्रेम ट्रेडर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली करते ही करंट टाइम फ्रेम ट्यून, मतलब ये वीकली का प्लान है यहाँ पे। Okay. तो And मतलब लोअर टाइम फ्रेम इज डेली। okay, okay. मंथली का लोअर टाइम फ्रेम क्या हुआ? Monthly का current time frame is monthly and lower time frame is weekly. क्वार्टरली का करंट टाइम फ्रेम क्या हुआ? Quarterly का current time frame is quarterly and current time frame is monthly. नहीं, quarterly का current time frame is quarterly and lower time frame is monthly. हाफ ईयरली अगर मैं कर रहा हूँ, आई एम ए ट्रेडर ऑफ हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, व्हाट इज करंट टाइम फ्रेम फॉर मी एंड व्हाट इज लोअर टाइम फ्रेम फॉर मी? So the current time frame is half yearly and lower time frame is quarterly. So simple it is. Okay. The next. Okay. Anything else, Amisha? What, sir? Pardon, sir? Anything else? Sir, thoda I've got confused, but I'll try करो। to understand. हो जाएगा। I will try. आज का वेबिनार सुनना, एक बार, दो बार, चार बार करेंगे ना तो आ जाएगा। Okay, okay, sir. हाँ. And sir, then if I have queries, when will you address the queries? Yeah, I will address the queries during the webinars on Thursday, and आपके लिए सैटरडे स्पेशल वेबिनार वापस एक्सटेंड किया है तो सैटरडे भी लेंगे। Okay, sir. Okay. ठीक है, और फिर भी ऐसा लगे कि नहीं रहा जा रहा है तो फोन कर लेना। Okay, sir. अगर मैं कभी फोन मिस कर दूं डोंट फील बैड, जब मैं फ्री रहूंगा तो आई विल कॉल यू बैक। Okay, sure, sir. Yes, sir. But wait, let us take up the queries only through webinars. Okay, The reason is query से वो query record भी हो जाती है, first benefit. Second benefit, आपकी query solve करता हूँ तो same query बाकी लोगों की भी होगी, Yeah, right. उनकी भी solve हो जाएगी। Third Yes, sir. benefit is I'm focused and I'm free for you at webinar timing. बाकी टाइम में भी मैं आपको रहता हूँ जो आपको आगे पता चलेगा। Okay. जाएगा ना तो आपको पता चलेगा though I am not with you but I am working for you only other than webinar timings. Yes, sir. ना? Okay. आपको improve करने के लिए 24 घंटा लगा हुआ हूँ मैं, and all 60 knows this very well and they will agree also all the time. उनको मेरा 5-5 मिनट का शेड्यूल मालूम है, वहाँ बैठे बैठे सोच सकते हैं सर अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, now it is my prayer time, so I have to log out the webinar
और हम थर्सडे मिलेंगे वापस। आपको ये 20 ट्रेड, खास करके 6 ट्रेड कैसे बिहेव करता है ये देखना है। लव यू ऑल, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye, take care.